Hello guys, this is Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKiller.com, and today we are going to discuss quasi contracts in this very short class. So stay tuned. Okay, so first of all, this slide has been taken from slideshare.in, but it really concerns only the Bayer Act and the Bayer sections. So that was a useful device that I wanted to convey before the start of the lecture. So quasi means almost or apparently but not really, and contract means an agreement enforceable by law. देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बताया था कि एग्रीमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं. लेट अस से कि आपने हैश का एग्रीमेंट किया, ड्रग का इधर से उधर लेने का एग्रीमेंट किया, वो भी एग्रीमेंट है. बट कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लॉज माने जाएंगे कि हाँ अगर ये एग्रीमेंट हो रहा है, ये कंसिडरेशन हो रहा है, ये एग्रीमेंट लीगल है, तो ही उसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया जाता है. ठीक है, लॉ में तभी उसकी प्रोटेक्शन होती है. तो क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट बट नॉट रियली. दैट्स व्हाई इसे क्वासी फेडरलिज्म, या जिसे कह सकते हैं आपकी उसके जैसा बट प्रॉपरली उसके जैसा नहीं. ठीक है, a quasi contract is not a contract at all because the essential elements for the formation of contract are absent. It is an obligation imposed by the law upon a person for the benefit of another, even in the absence of a contract. It is based on the principle of equity. So now the thing is that in this quasi contract आपको जो सीधी बात बोली जा रही है कि इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था, एड इडम मीटिंग ऑफ द माइंड्स होते हैं. यहाँ पर तो मीटिंग ऑफ द माइंड्स है ही नहीं. यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो आपने बस ये एक पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखना है और फिर आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है. सो लेट अस गो अहेड. So let us say in case of a plumber who accidentally installs the sprinkler system in the lawn of the wrong house. The owner of the house had learned the previous day that his neighbor was getting a new sprinkler. That morning he sees the plumber is installing them in his own lawn. Pleased at the mistake, he says nothing and then refuses to pay when the plumber hands him the bill. Now it comes under quasi contract because the man already knew that the sprinkler was being installed mistakenly. So court would make him pay बिकॉज ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर देखिए जो केस है कि प्लम्बर है, मान लेते हैं कि प्लम्बर ने गलती से आपके घर में लगा दिया एक स्प्रिंकलर. आपको पता है कि वो आपके घर पे नहीं लगना था, वो साथ वाले घर पे लगना था. आपने वो स्प्रिंकलर लगा भी लिया, सारी चीजें अपने पास रख भी ली, और बाद में आपने उस प्लम्बर को पैसे देने से मना कर दिया या उसकी लेबर कॉस्ट देने से मना कर दिया, knowing that you are not the one who has called the plumber for installing a sprinkler in your house. So that will mean a quasi contract is formed where by the law of equity you will have to pay him the plumbing charges. ठीक है, और अगर आप वो वहां से उठा के तो लेके जाएगा ही जाएगा जो उसने स्प्रिंकलर लगाया, क्योंकि आपने तो मंगवाया नहीं है, वो तो साथ वाले पर्सन ने मंगवाया. लेकिन वो जो डे का लेबर लगा उसका पूरा 3 घंटे का 4 घंटे का, वो आपको देना पड़ेगा. Salient features of the quasi-contractual rights. Quasi-contract is not a real contract. It is not based upon the offer and the acceptance rule. मैंने आपको शुरू में बता दिया. It does not arise from any formal agreement, but it is imposed by law. It is a right which is available not against the entire world, but against a particular person. ठीक है. तो जस्ट इन रैम होता है जब हमारे पास, मतलब हम आपके पास एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है इन प्राइवेट, दो पार्टीज और इंडिविजुअल्स अपने आप में राइट्स को एनफोर्स करती हैं. It is not against the whole world. So let us say that Purvansh and Shreya are having a contract that he will supply her books from Shimla to Chandigarh. So if he does not supply her the books that she required, and she has already paid the money, or she has already had like let us say a future contract, then he is liable in the court of law because ये private privacy है contract की. लेकिन वो मुझे नहीं स्यू कर सकती, या अपने फादर को नहीं स्यू कर सकती, या अपने किसी और फ्रेंड को नहीं स्यू कर सकती जस्ट बिकॉज पूर्वांश डिड नॉट गिव हर द बुक्स. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्ल्ड राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज होता है. सो फॉर एग्जांपल पीसफुल पोजेशन ऑफ माय प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वो हमेशा हमारे वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है पूरा, कि कोई भी मेरी पीसफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मेरी प्राइवेट राइट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा. कोई भी जब करेगा तो वो एकदम से वो पर्सन लायबल बन जाएगा. उसमें कोई भी हो सकता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल आपका घर है, उसमें मैं एंटर कर जाता हूँ बिना कोई पर्पस के, ठीक है, तो मैं लायबल हो जाऊंगा एकदम से. कोई और कर जाता है वो भी हो जाएगा, कोई और करता है वो भी हो जाएगा, उसमें प्रीवियसली का नाम नहीं है.
So doctrine of quasi contract है unjust enrichment है, that person should not be allowed to enrich himself at the expense of unknown parties. और quantum merit है, ये मैंने पहले कराया था आपको, actual value of the services performed है. तो इन दो बेसिस के ऊपर quasi contract, equity, quantum merit, unjust enrichment, ये सारे आपस में linked है. तो अगर आपने मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने कोई सर्विसेज आपको प्रदान की, या मान लेते हैं आपके घर पे आया कोई और आप वो कह रहे हैं कि हम फेशियल कराते हैं मैम, आप फेशियल की सर्विसेज ले लेते हो जबकि वो कॉल किया था साथ वाले पर्सन ने, तो आपको उसके फेशियल सर्विसेज के पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज यू ऑल्सो नो इट ना कि आपने फेशियल सर्विसेज वाले को नहीं बुलाया हुआ है कैश देके. लेट अस से उबर क्लैप जैसे बहुत सारे महानगरों में ये सर्विसेज चल रही हैं, या आपके घर पे हेयर ड्रेसर आ जाएगा. इफ यू टेक द सर्विसेज देन यू हैव टू पे फॉर इट. So because unjust enrichment should not be done. And how is unjust enrichment and quantum merit है, दोनों मिलके बनाते हैं. unjust enrichment है, let us say somebody left a milk packet, मैंने कल भी कराया था ये, a milk packet outside your house which you know is not yours, and you use it, and afterwards you refuse to pay the person for it. So that will come under enrichment, which is unjust. So the court will ask you to pay for it. सेक्शन 68 से 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स डील होते हैं. 68 से 72 आप वैसे ध्यान रख लेना, बट एज सच कोई क्वेश्चन इससे कभी आया नहीं कि सेक्शन से कहां तक होते हैं, बिकॉज दीज आर रियली द क्वेश्चंस व्हिच कम इन जुडिशियरी, नॉट एज सच इन द लॉ एग्जाम्स फॉर एलएलबी और 5-year BLLB. Supplies of necessaries to incapable person. If a person is incapable of entering into a contract, or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. आप बस इसे supply of necessaries से याद रख सकते हैं. A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. Because वो lunatic जो है वो नहीं कर सकता अपना खर्चा और देखभाल, और A अगर उसका ध्यान रखता है तो B की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से वो ले सकता है, जो भी हिस्सा है, जो भी उसकी केयर का हिस्सा आता है. बट मैंने वही कहा था कि जैसे मान लो खाना खिला रहा है तो राजमा चावल या जो भी उस टाइम पे दाल रोटी चावल का पैसा चल रहा होगा या मेडिकल एक्सपेंसेस का पैसा चल रहा होगा वही ले सकता है. कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि मैंने इसको जी चांदी की थालियों में खाना खिलाया हुआ है तो मेरे को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे दो, बिकॉज अगेन इट हैज टू बी क्वांटम मेरिट. दैट्स व्हाई आई सेड डॉक्ट्रिन ऑफ जो आपका आता है क्वांटम मेरिट की जो एक्सप्लेनेशन आती है. ठीक है. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. So let us say that A holds land in Bengal on a lease. B is the owner of the land. The land revenue payable by B to the government is in arrears. पैसे भरे नहीं है लैंडलॉर्ड ने और गवर्नमेंट ने बोला कि लैंड जो है वो सेल पे लगा दी जाए. तो इसमें A जो है वो लैंड लीज के पैसे भर देता है. ठीक है. तो बी को फिर ए को देने पड़ेंगे ना पैसे, क्योंकि वो तो लैंडलॉर्ड का बनता था, वहां पे लैंड जो लैंड है उसके टैक्सेस का पैसा देना. ठीक है. तो ए ने भर दिए बिकॉज ए नहीं चाहता था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो जाए, बिकॉज उसकी तो फिर लीज खत्म हो जाएगी. ए को तो भरना पड़ा अंडर नेसेसिटी. ठीक है. आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया. Payment for a non-gratuitous act. This is something which I have told you earlier. I will not repeat it. A tradesman leaves his good at the B's house by mistake. B treats the good as his own and uses them. B is bound to pay for the goods. Non-gratuitous act. Gratuitous होते हैं जो आप प्यार से दया भावना से कर देते हो. Non-gratuitous का मतलब आपने उस तरीके से तो वो रख के ही नहीं गया था ना ट्रेड्समैन, वो तो रख के गया था शायद उसका घर होगा, वो घर निकला नहीं तो किसी और पर्सन का निकला, तो इट्स non-gratuitous act. So you are bound to pay for it. लाइबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स. अगर कोई फाइंडर ऑफ द गुड्स है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो पोजीशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे गुड्स की और उसको वापस कर दे. ठीक है. और जो भी रीजनेबल केयर हो सकती है गुड्स की वो उसे बरकरार रखे. पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन सेक्शन 72 के अंदर आता है. अगर किसी ने पेमेंट बाय मिस्टेक कर दी है या अंडर कोर्जन कर दी है तो उस पर्सन को भी वापस वो पैसे लेने का अधिकार है. So A and B jointly owe rupees 5,000 to C. A alone pays this amount to C. B, not knowing this again, pays rupees 5,000 to C. In this case, C is bound to repay 5,000 to B as this amount is paid to him by mistake. So let us say दो लोग हैं A और B, उन्होंने C को 5,000 देने हैं. A ने 5,000 C को दे दिए और B ने अलग से जाके दोबारा 5,000 C को दे दिए. तो इन दोनों केसेस के अंदर फिर वापस करने पड़ेंगे C को अमाउंट. ठीक है. So I guess that's all for today's class. Thank you very much. And
a quasi contract exists in the absence of a written contract, and maybe court order to avoid one party gaining at the expense of another party's actions. So that's all for today. Thank you very much. This is Rohit Sharma. I will meet you tomorrow in the next class. Thank you.